So today we are going to start with derivative of inverse function. Let's understand first how to find out inverse for a given question. Like if we have a question as y equal to x cube, ये given question है, मतलब y is a function of x cube. That is y is a function of x. Simply. Now you have to find its inverse. Inverse मतलब now you have to find out x in terms of y. मतलब क्वेश्चन y इक्वल टू x दिया है तो अब आपको आंसर x इक्वल टू वाई के टर्म्स में फाइंड करना. तो सिंपली इफ यू टेक क्यूब रूट ऑन बोथ साइड that gives you a inverse function x is equal to cube root of y. This become a inverse function for a given question. Understand one more, like y is equal to sin x, मतलब y is a trigonometric function of x. Now we have to write down x equal to answer in terms of y. So if we find its inverse x is equal to, we can write down sin inverse of y. मतलब x is a inverse trigonometric function of y. Understand one more. If we have y is equal to log x, मतलब y is a logarithmic function of x. So now we have to find out answer in terms of x equal to function of y. So we can do directly x is equal to e raised to y. That is taking anti-log on both sides. We are getting an inverse function. That is x is a exponential function of y. Let's take some more example. Previous 3 एग्जाम्पल में हमने एक स्टेप में डायरेक्टली आंसर फाइंड कर लिया, बट इन अ फोर्थ एग्जाम्पल वी आर नॉट एबल टू फाइंड डायरेक्टली इनवर्स फंक्शन. थोड़े स्टेप्स लिखने पड़ेंगे. जैसे इफ वी स्टार्ट विद अ क्वेश्चन y इज इक्वल टू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो y को हम y/1 कंसिडर कर सकते हैं. एंड नाउ वी अप्लाई इन्वर्ट एंडो एंड वी इन्वर्ट द टर्म्स. तो जो y था वो 1/y हो गया, और जो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर था वो 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया. Now simply if we shift 1 on a left hand side, that gives you x square is equal to 1 upon y minus 1. So if we make denominator same by doing simple cross multiplication, gives you x square is equal to 1 minus y upon y. But we have to find out x equal to. So simply we take square root on both sides. And if we take square root on both sides, that gives you an inverse function x is equal to square root of 1 माइनस वाई होल डिवाइडेड बाय वाई. तो कुछ क्वेश्चंस में स्टेप्स लिखने पड़ते हैं, कुछ क्वेश्चन में डायरेक्टली आपको आंसर मिल जाता है विद इन अ स्टेप, बट कुछ क्वेश्चन में इट्स वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड आउट द इनवर्स फंक्शन. तो उस क्वेश्चन को हम डायरेक्टली भी डील कर सकते हैं. अंडरस्टैंड वन मोर, वाई इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x. तो दिस इज द क्वेश्चन. नाउ सिंपली इफ वी शिफ्ट tan on right side or left side, that gives you x is equal to tan y, which is the inverse function of your given question. The last one, if we have y is equal to e raised to cos x, मतलब y is a exponential function of trigonometric function of x. Now what we do, taking log on both sides, that gives you log y is equal to log e raised to cos x. So e raised to के जो पावर में cos x है वो मल्टीप्लाई में आ जाएगा और log e का आंसर 1 हो जाएगा. That gives you answer as log y equal to cos x. But we have to find our answer in terms of x is equal to function of y. So simply cos को हम log y के साथ ले लेंगे, तो that become answer as x is equal to cos inverse of log y, which is the inverse function for a given question. तो कुछ क्वेश्चंस में ये बहुत इजी होता है कि फाइंड इट्स इनवर्स, कुछ क्वेश्चन में कुछ स्टेप्स लिखने पड़ते हैं, एंड इन सम क्वेश्चन इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम टू कन्वर्ट द इनवर्स फंक्शन. तो उस क्वेश्चन का डेरिवेटिव हम डायरेक्टली भी इवेल्युएट कर सकते हैं. दैट विल डिस्कस फर्दर. लेट अंडरस्टैंड द स्टैंडर्ड आंसर. इफ अ गिवन फंक्शन इज y इक्वल टू f of x, then its inverse function is x is equal to f inverse of y. मतलब y अगर x का फंक्शन है तो x is equal to f inverse of y we are getting as a inverse function. Let's revise formula for the inverse function. Standard formula for derivative of a inverse function as we discussed already in a first lecture जब हमने formula discuss किया था. These are the 6 trigonometric inverse trigonometric functions are there, like y is equal to sin inverse x. तो उसका डेरिवेटिव वेरी सिंपल, dy by dx is equal to 1 upon under root of 1 minus x square.
और जो x का वैल्यू हमारे पास होगा वो हमेशा मॉड x लेस देन 1 होना चाहिए। x का वैल्यू कुछ भी हो लेकिन वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, देन एंड देन ओनली दिस फॉर्मूला इज एप्लीकेबल। Similarly, derivative of cos inverse x is equal to dy by dx is equal to minus 1 upon under root of 1 minus x square. Condition is mod x less than equal to 1, क्योंकि mod x का वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1 होगा तो ही स्क्वायर रूट के अंदर जो आंसर है वो पॉजिटिव आएगा, अदरवाइज दैट गिव्स यू अ नेगेटिव नंबर एंड दैट बिकम अ कॉम्प्लेक्स नंबर। नेक्स्ट वन इज 1 upon 1 plus x square। यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं है बिकॉज कोई स्क्वायर रूट नहीं है। Similarly, dy by dx for cot inverse x is minus 1 upon 1 plus x square. Similarly, next one y is equal to sec inverse x है तो डेरिवेटिव इज 1 upon x into under root of x square minus 1 जब x greater than 1 होगा, और dy by dx is equal to minus 1 upon x into under root of x square minus 1 जब x less than 1 minus 1 होगा। Similarly, डेरिवेटिव ऑफ cosec inverse x is अबव वाले का थोड़ा उल्टा है, dy by dx is equal to minus 1 upon x into under root of x square minus 1 when x greater than 1, or dy by dx is equal to 1 upon x into under root of x square minus 1 when x less than minus 1. So this is the standard formula for a trigonometric functions. फॉर्मूला बिना इस चैप्टर का कुछ नहीं हो सकता, जैसा कि हमने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। So it's very important to revise formula on daily basis. So before starting, we'll discuss some trigonometric functions का formula concept. We are writing them in a table form. Let's understand. Like the first one, sin inverse of sin x is always equal to x. एक example भी discuss करेंगे. Cos inverse of cos x is equal to x. Tan inverse of tan x equal to x. Cot inverse of cot x equal to x. Sec inverse of sec x equal to x. And cosec inverse of cosec x equal to x. It's a simple concept. Let's understand by an example. Like as we know, sin 30 का वैल्यू होता है 0.5 मतलब 1 upon 2, और sin inverse of 1 upon 2 का वैल्यू होता है 30. तो therefore we are using a concept and writing sin inverse of sin 30 gives you 30. So by observing this easily you'll understand कि ऐसा क्यों लिखते हैं, क्योंकि sin 30 का वैल्यू 0.5 था और sin inverse of 0.5 again gives you 30 degree. So this 6 result will keep in mind कि sin inverse of sin x equal to x होता है, because sin inverse और sin का effect will cancel, inverse trigonometry और उस same trigonometry का effect cancel हो जाएगा और जो angle था वही आपका आंसर हो जाएगा. Understand one more concept, that is sin inverse of x is equal to cosec inverse of reciprocal of x. Similarly, cosec inverse x is equal to sin inverse of 1 upon x. Cos inverse x equal to sec inverse of 1 upon x. Sec inverse x is equal to cos inverse of 1 upon x. Tan inverse x equal to cot inverse of 1 upon x. And cot inverse x is equal to tan inverse of 1 upon x. ये भी self proved concept है. Let's understand one more time. As we know, sin inverse of 1 upon 2 मतलब sin inverse of 0.5 होता है 30 डिग्री, और उसी चेक 1 upon 2 का रेसिप्रोकल हम चेक करेंगे दैट इज 2, और उसका हम कोसेक इनवर्स निकालेंगे तो वो भी 30 डिग्री देता है. तो इससे ये प्रूव होता है कि साइन इनवर्स ऑफ 1 upon 2 एंड कोसेक इनवर्स ऑफ 2 both answers are same. So therefore we can write on sin inverse of x will be equal to cosec inverse of 1 upon x. So it's a simple concept. Let's understand the next one. Sin inverse of x plus cos inverse of x equal to 90 degree, that is pi by 2. Similarly, for tan inverse x plus cot inverse x equal to pi by 2. Sec inverse x plus cosec inverse x is equal to pi by 2. Tan inverse x plus tan inverse y always gives you tan inverse of x plus y divided by 1 minus x. Why? Tan inverse of x minus tan inverse of y is equal to tan inverse of x minus y whole divided by 1 plus xy. This all you can prove by a simple concept. As we know, sin inverse of 1 by 2 होता है pi by 6 which is 30 degree, and cos inverse of 1 by 2 for same value of x answer is 60 degree which is pi by 3. अगर आप दोनों को ऐड करेंगे तो on a right side we get as 90 degree. Therefore we keep in mind this concept and this concept will prove.
Let's understand next. Sine inverse of cos x can be written as sine inverse of sine of pi by 2 minus x. मतलब cos x को हटा के हमने sin 90 minus x लिखा है, and then by the starting concept sin inverse and sin will effect cancel gives you pi by 2 minus x. Similarly valid for cos inverse of sin x. Similarly valid for tan inverse of cot x. Cot x को हटा के हम tan of pi by 2 minus x लिख सकते हैं, या फिर tan x को हटा के हम cot of pi by 2 minus x लिख सकते हैं. Sec inverse of cosec x is equal to sec inverse of sec pi by 2 minus x. Sec and sec inverse का effect cancel gives you pi by 2 minus x. Similarly cosec inverse of sec x is equal to pi by 2 minus x. Understand by a concept. As we know sin 30 degree is equal to 0.5, cos 60 degree is also equal to 0.5. इसका मतलब sin 30 equal to cos 60, और जो cos 60 है उस cos 60 को हम cos 90 minus 30 भी लिख सकते हैं, इसलिए हमने sin 30 को हटा के उसके जगह पे cos 90 minus 30 लिखा तो भी चलेगा. So this concept we are using. So this is very important to understand because इसके बिना इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव लेना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड, बहुत ज़्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं है, थोड़ा रिवाइज करना है. एक क्वेश्चन कम सॉल्व करेंगे लेकिन डेली बेसिस पे रिवीजन बहुत ज़रूरी है. सो हियर इन ऑल दिस फॉर्मूला और ट्रिग्नोमेट्रिक कॉन्सेप्ट x ऑलवेज अ रियल वेरिएबल, x का वैल्यू हमेशा रियल वैल्यू होना चाहिए. लेट्स स्टार्ट विद the question is find derivative of a function y equal to f of x using derivative of a inverse function x is equal to f inverse of y in the following. मतलब जो क्वेश्चन y इक्वल टू के टर्म्स में दिया है तो आप डायरेक्टली dy बाई डी एक्स नहीं फाइंड कर सकते. पहले हम लोग को उसका फाइंड करना है इन्वर्स फंक्शन और उसका डेरिवेटिव लेके फिर हमें dy बाई डी एक्स फाइंड करना है. सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट विल फाइंड आउट इन्वर्स फंक्शन. सो उसके लिए आपको आंसर लिखना है x इक्वल टू फंक्शन ऑफ y. तो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट वी रिमूव स्क्वायर रूट फ्रॉम राइट हैंड साइड. फॉर दैट वी हैव टू डू स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड. As soon as you'll do squaring on both sides gives you answer as y square is equal to 2 minus root x. Now we can write in next step as root x is equal to 2 minus y square. Y square को हमने राइट में शिफ्ट किया, माइनस रूट x को हमने लेफ्ट में शिफ्ट किया. But still we are not having answer x equal to, we have root x equal to. So again we do squaring on both side gives you answer as x is equal to 2 minus y square the whole square. अब इस फंक्शन का डेरिवेटिव, इस क्वेश्चन का डेरिवेटिव लेना है जो अभी हमें मिला, दैट इज x इक्वल टू 2 माइनस वाई स्क्वायर द होल स्क्वायर, और इसका हेल्प लेके हमें क्वेश्चन का डेरिवेटिव निकालना है. So we'll differentiate here with respect to y, not with respect to x, because here changing variable is y, x is equal to y. So now we'll write on, this is our inverse function. So now we have our inverse function. We differentiate this with respect to y. So dx by dy is equal to d by dy of our question. Now basic concept apply करके हमें डेरिवेटिव लेना है. First we take derivative of power by applying a formula of x raised to n. So we get answer as 2 into 2 minus y square the whole raised to 1 into d by dy of that bracket, जो bracket के अंदर है उसका डेरिवेटिव लेना है, that is 2 minus y square. So in the next step 2 into 2 minus y square as it is will write down, and derivative of 2 is 0 and derivative of minus y square is minus 2y. That gives you answer as, in next step 0 minus 2y is minus 2y, multiply by 2 gives you dx by dy is equal to minus 4y into 2 minus y square. ये तो इनवर्स फंक्शन का डेरिवेटिव हुआ. हमें ओरिजिनल फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करना है इनवर्स फंक्शन का हेल्प लेके. सो डेरिवेटिव ऑफ y of f of x using derivative of x of f inverse of y. So our concept is simply we can write down dy by dx is equal to 1 upon dx by dy.
अगर आप चेक करेंगे तो dy वापस से न्यूमरेटर में जाएगा, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स कॉमन सेंस होता है। बस हमने जो न्यूमरेटर का dy है उसे डिनोमिनेटर में लिख दिया है dx के। सो नाउ इन अ नेक्स्ट स्टेप वी कैन राइट ऑन वैल्यू ऑफ dx बाई dy, देयरफॉर dy बाई dx इज इक्वल टू 1 अपॉन minus 4y into 2 minus y square, which is our answer of given question. So this become your derivative by using derivative of a inverse function. Let's understand one more. First we have to find its inverse function, and then taking the help of derivative of inverse function we'll find out derivative of this given question. So first जो भी पावर में 2x minus 3 है उसे हमें मल्टीप्लाई में लाना पड़ेगा, और उसके लिए हमें दोनों साइड लॉग अप्लाई करना पड़ेगा. सो आफ्टर अप्लाइंग लॉग वी गेट log y इक्वल टू log ऑफ e रेज टू 2x माइनस 3. तो जो पावर में 2x माइनस 3 है वो मल्टीप्लाई में आएगा, और log e 1 होता है, दैट वी नो. सो log y is equal to we get 2x minus 3. So in the next step we can write on 2x is equal to log y plus 3. Therefore x is equal to, we can write on log y plus 3 whole divided by 3. Now we have our inverse function. Now we'll differentiate this inverse function with respect to y, क्योंकि x is now the function of y. So dx by dy is equal to d by dy of our question, which is log y plus 3 whole divided by 2. तो 1 upon 2 कांस्टेंट बाहर ले लेंगे. log y का डेरिवेटिव हो जाएगा 1 upon y, और y का डेरिवेटिव हो जाएगा 1, बिकॉज वी आर डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू y. और 3 का डेरिवेटिव, एज वी नो, डेरिवेटिव ऑफ अ कांस्टेंट इज 0. सो log y का डेरिवेटिव हम लिखेंगे 1 upon y, और 3 का डेरिवेटिव बिकम 0. सो ओवरऑल आंसर ऑफ dx by dy we get as 1 upon 2y. But we have to find out derivative of y of f of x using derivative of x of f inverse of y. So we know a concept, dy by dx can be written as 1 upon dx by dy. So substituting value of dx by dy and simplifying, therefore gives you dy by dx is equal to 2y, which is what derivative of a given question. So नेक्स्ट आप यहाँ पे चाहिए तो y का ओरिजिनल वैल्यू अपडेट कर सकते हैं, दैट इज e रेज टू 2x माइनस 3, और एज इट इज यू कैन राइट योर आंसर dy by dx is equal to 2y. Let's understand one more. Y is equal to log to the base 2 of x upon 2. So first we have to find its inverse function. So by using basic concept of log, जो बेस है 2 वो अगर लेफ्ट में आएगा तो y 2 के पावर में आ जाएगा. सो गिव्स यू 2 रेज टू y इज इक्वल टू x अपॉन 2. सो देयरफॉर वी कैन राइट ऑन x इज इक्वल टू 2 into 2 रेज टू y. This become your inverse function of given question. Now we differentiate it with respect to y. So dx by dy is equal to d by dy of 2 into 2 raised to y. 2 कांस्टेंट है, हम बाहर ले लेंगे, एंड 2 रेज टू y का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y विल फाइंड आउट, दैट गिव्स यू 2 into 2 रेज टू y into log 2, और y का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y is 1. So this is what answer of dx by dy. But we have to find out derivative of y with respect to x, helping by taking the help of x is equal to f inverse of y. So we know dy by dx is equal to 1 upon dx by dy. So dy by dx is equal to 1 upon 2 into 2 raised to y into log 2. This is what the answer of your given question. हर एक कॉन्सेप्ट जब हमें डेरिवेटिव मिल रहा है तो if you want we can write on the original value of y, no problem in that, but you can keep it as it is, then also you'll get the right answer because it's a right one. Only we are, if you want we can increase the steps by updating the value of y. So this is what, using inverse function we are finding derivative. Continue the next question. Find the derivative of inverse function. प्रीवियस क्वेश्चंस में हमने इनवर्स फाइंड किया और फिर डेरिवेटिव लिया बिकॉज एज पर द क्वेश्चन वही करना था, बट यहाँ पे मेन क्वेश्चन नंबर 2 में ऐसा कुछ नहीं बोला है, फाइंड डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन पूछा है, उसका इनवर्स फाइंड करना ज़रूरी नहीं है. सो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू ई रेज टू एक्स. अगर आप चेक करें तो इसका इनवर्स फाइंड करना
थोड़ा डिफिकल्ट है, तो इसलिए हम इन्वर्स फाइंड करने में नहीं पड़ेंगे, डायरेक्टली वी डिफरेंशिएट इट विथ रिस्पेक्ट टू x. So dy by dx is equal to d by dx of x square into e raised to x. So x square into e raised to x, so we can apply rule of u into v, that is e raised to x into d by dx of x square plus x square into d by dx of e raised to x. So next answer, x square का derivative is 2x and e raised to x का derivative is e raised to x. So the final answer of dy by dx gives you 2x into e raised to x plus x square into e raised to x. बट ये ओरिजिनल क्वेश्चन का डेरिवेटिव हुआ, हमें इन्वर्स का डेरिवेटिव फाइंड करना है. सो बाय यूजिंग अ सिंपल कॉन्सेप्ट, dx by dy is equal to 1 upon dy by dx. प्रीवियस क्वेश्चन में डेरिवेटिव ऑफ ओरिजिनल फंक्शन फाइंड करना था, दिस करंट क्वेश्चन में डेरिवेटिव ऑफ इन्वर्स फंक्शन फाइंड करना है. आप चाहिए तो इसका पहले इन्वर्स फाइंड कर सकते हैं क्वेश्चन का और फिर उसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं, बट इट टेक लॉट ऑफ टाइम बिकॉज क्वेश्चन takes time to convert into its inverse function. So now we'll update value of dy by dx which we have. So dx by dy is equal to 1 upon 2x into e raised to x plus x square into e raised to x. डिनोमिनेटर में से आप चाहिए तो x into e raised to x को कॉमन ले सकते हैं. So that gives you answer as dx by dy is equal to 1 upon x into e raised to x into 2 plus x. हमने क्वेश्चन में इन्वर्स फंक्शन फाइंड नहीं किया है क्योंकि क्वेश्चन का वो रिक्वायरमेंट भी नहीं था. डायरेक्टली हमने y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x फाइंड किया और उसका रेसिप्रोकल कर दिया. दैट गिव्स यू आवर आंसर ऑफ इन्वर्स फंक्शन. लेट्स कंटिन्यू वन मोर. y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस लॉग x. आपको इसका इन्वर्स फाइंड करना ज़रूरी नहीं है, सिर्फ इसके इन्वर्स का डेरिवेटिव चाहिए जो कि हम dy by dx से भी फाइंड कर सकते हैं. सो नाउ विल डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x. सिंपल डेरिवेटिव, स्टार्टिंग के 2 लेक्चर आपने ठीक से प्रिपेयर किए होंगे तो इट्स इजी टू फाइंड इट्स डेरिवेटिव. सो dy by dx इज इक्वल टू d इंटू dx ऑफ d by dx ऑफ x स्क्वायर प्लस log x. प्लस है तो डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर प्लस डेरिवेटिव ऑफ log x हम डायरेक्टली अप्लाई करेंगे. सो डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर इज 2x एंड डेरिवेटिव ऑफ log x इज 1 upon x. हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया है, so that gives you 2x square plus 1 whole divided by x, but we have to find derivative of its inverse function. So simply you will do reciprocal. So dx by dy is equal to 1 upon dy by dx. Updating the value and basic concept of maths gives you answer as dx by dy is equal to 1 upon 2x square plus 1 upon x. Invert कर देंगे, that gives you answer as dx by dy is equal to x upon 2x square plus 1. इन्वर्स फाइंड करने का ज़रूरत नहीं है, dy by dx का हेल्प लेके आप dx by dy फाइंड करेंगे. that is nothing but your answer of inverse derivative of a inverse function of given question. आप पहले अगर उसका इन्वर्स फाइंड करें और डेरिवेटिव फाइंड करेंगे then also you will get same answer. Understand one more. Y is equal to x into 7 raised to x. So we differentiate it with respect to x. So dy by dx is equal to d by dx of x into 7 raised to x. We apply u into v. So 7 raised to x into d by dx of x plus x into d by dx of 7 raised to x. So x का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x1 होता है. 7 raised to x का डेरिवेटिव with respect to x is 7 raised to x into log 7. That will write down. So if you want you can take 7 raised to x common. Gives you answer as 7 raised to x into 1 plus x into log 7. This is answer of dy by dx. But we have to find out answer of dx by dy. So simply we do its reciprocal. Updating the answer of dy by dx. Answer is dx upon dy is equal to 1 upon 7 raised to x multiplied by 1 plus x into log 7. This is what answer of our questions inverse function का derivative. Let's continue the further question. So let's start with the question number 3. Find derivative of inverse function of following and also find its value at a given point. इन्वर्स फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करना है एट गिवन पॉइंट. सो
क्वेश्चन इज y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 2 इंटू लॉग एक्स क्यूब एट x इक्वल टू 1। तो फर्स्ट स्टेप, पहले आप इसका इन्वर्स फाइंड करिए, उसका डेरिवेटिव लीजिए और उसमें x का वैल्यू 1 रख दीजिए। बट एज पर द क्वेश्चन अगर आप चेक करें तो क्वेश्चन का इन्वर्स फाइंड करना थोड़ा डिफिकल्ट है, तो हम डायरेक्टली गिवन क्वेश्चन को ही डिफरेंशिएट करेंगे। और क्वेश्चन में अगर आप चेक करें तो वी कैन अप्लाई रूल ऑफ log m raised to n, दैट इज log x क्यूब बिकम 3 log x और 2 साथ में है तो इट बिकम 6 log x। So we differentiate with respect to x gives you dy by dx is equal to d by dx of 3x square plus 6 log x। Now we'll differentiate with respect to x, एक बार 3x square का डेरिवेटिव लेना है और एक बार 6 log x का डेरिवेटिव लेना है। 3x square का डेरिवेटिव बिकम 6x और 6 log x का डेरिवेटिव बिकम 6 upon x। So if we do cross multiplication of denominator वाला x gives you dy by dx is equal to 6x square plus 6 whole divided by x। तो इसका वैल्यू एट x इक्वल टू 1 अगर हम चेक करें तो सिंपली x का वैल्यू 1 रखना है। सो dy by dx एट x इक्वल टू 1, एट सफिक्स में हमने x इक्वल टू 1 लिखा तो गिव्स यू 12। ये dy by dx का वैल्यू है, हमें dy by dx का वैल्यू नहीं dx by dy का वैल्यू फाइंड करना है, विच इज़ द इनवर्स ऑफ अ गिवन क्वेश्चन। तो अगर आप चेक करें जब x का वैल्यू 1 है, इसको हम इक्वेशन 1 मार्क करके रख रहे हैं, बाद में यूज़ करेंगे। जब x का वैल्यू 1 है तो उस टाइम पे y का क्या वैल्यू होगा, क्योंकि जब आप इन्वर्स फाइंड करते हैं तो y बिकम वेरिएबल, y के टर्म्स में क्वेश्चन कन्वर्ट हो जाता है। बट यहाँ पे हमने इन्वर्स फाइंड नहीं किया है, बट y के वैल्यू का ज़रूरत पड़ेगा। तो x इक्वल टू 1 है तो y का वैल्यू क्या होगा, तो हमने ओरिजिनल क्वेश्चन में x की जगह पे 1 रखा तो y का वैल्यू 3। सो देयरफॉर व्हेन वी राइट डाउन डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन तो उस टाइम पे वेरिएबल y होगा, तो dy बाई dx में x वेरिएबल होता है इसलिए x का वैल्यू हम अपडेट करें, लेकिन dx बाई dy में y वेरिएबल होगा तो y का वैल्यू विल काउंट एज 3 विच इज इक्वल टू 1 अपॉन dy बाई dx एट x इक्वल टू 1। सो लिखने का तरीका बहुत क्लियरली समझे, dx बाई dy में y वेरिएबल है और dy बाई dx में x वेरिएबल है। अगर आप क्वेश्चन का इन्वर्स फाइंड करेंगे और वैल्यू अपडेट करेंगे देन ऑल्सो विल गेट द सेम आंसर। सो dy बाई dx एट x इक्वल टू 1, आंसर हमने फाइंड किया 12, सो दैट वी अपडेट गिव्स यू dx बाई dy at y equal to 3 and at x equal to 1 gives you answer as 1 upon 12. Understand one more, this 12 we are writing from equation number 1. Understand one more, y is equal to sine of x minus 2 plus x square at x equal to 2। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि इन्वर्स इसका फाइंड करना थोड़ा डिफिकल्ट है, इसलिए हम इन्वर्स फाइंड नहीं कर रहे हैं, डायरेक्टली इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू x। So if we differentiate with respect to x, dy by dx is equal to d by dx of sine of x minus 2 plus x square। So simply एक बार sine of x minus 2 का डेरिवेटिव लेना है और एक बार x square का डेरिवेटिव। तो साइन का डेरिवेटिव होता है cos मल्टीप्लाई बाय d by dx of x minus 2 as per the chain rule and derivative of x square is 2x। So in next step में आप x minus 2 का डेरिवेटिव लेंगे तो x का डेरिवेटिव 1 minus 2 का डेरिवेटिव 0, that gives you overall 1, and that when we multiply with cos x minus 2 there is no change, so we get dy by dx is equal to cos of x minus 2 plus 2x। so this is what answer of dy by dx। इसमें हम x का वैल्यू 2 अपडेट करें तो dy by dx at x equal to 2 gives you cos 0 plus 4 and cos 0 का वैल्यू होता है 0, that 0 plus 4 gives you 4। तो आंसर इज dy by dx at x equal to 2 is 4, that we mark as equation number 1। now at x equal to 2 y का क्या वैल्यू होगा, so when we update x equal to 2 gives you y as 4। तो जब x का वैल्यू 2 है तो y का वैल्यू हो रहा है 4। so as we know dy by dx का हेल्प लेके we have to find out dx by dy। dx by dy में y वेरिएबल है तो उस टाइम पे y का वैल्यू 4 होगा जब x का वैल्यू 2 है। so using this concept we can find out answer 1 upon dy by dx at x equal to 2। so updating the values, answer is 1 upon
4 is the answer of dx by dy at x equal to 2 and y equal to 3. This becomes your final answer. Moving further, now simply we have to start with our next question number 4, जिसमें simply we have to find out derivative का हेल्प लेके कुछ जो भी दिया है उसे प्रूफ करना है. द फर्स्ट वन जो प्रॉपर्टी हमने डिस्कस किया था, tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई 2 कैसे होता है. तो जो हमने फॉर्मूले में डिस्कस किया था वो ट्रिग्नोमेट्रिक कॉन्सेप्ट था, बट यहाँ पे डेरिवेटिव का हेल्प लेके आपको ये प्रूफ करना. सो लेट्स स्टार्ट विद द सॉल्यूशन. लेट वी अज्यूम tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x एज f ऑफ x. सो we'll mark it as equation number 1. therefore we have to prove, हमने tan inverse x plus cot inverse x को f of x बोल दिया है, इसका मतलब f of x equal to हमें pi by 2 प्रूफ करना है. so now we'll differentiate equation number 1, मतलब f of x को हम with respect to x differentiate कर रहे हैं. तो f of x का डेरिवेटिव become f dash of x and tan inverse x का डेरिवेटिव is 1 upon 1 plus x square plus cot inverse x का डेरिवेटिव is minus of 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर. सिंपली आप चेक कर रहे हैं 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर विल कैंसिल. सो एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल टू 0. डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन इज 0, इसका मतलब कॉमन सेंस है कि जो ओरिजिनल क्वेश्चन है वो एक कांस्टेंट फंक्शन है, क्योंकि कांस्टेंट फंक्शन का ही फर्स्ट डेरिवेटिव 0 होता है. इसका मतलब एफ ऑफ एक्स हैज़ टू बी अ कांस्टेंट वैल्यू. मतलब आप एफ ऑफ एक्स में एक्स का कोई भी वैल्यू अपडेट करिए वो हमेशा आपको एक कांस्टेंट वैल्यू देगा, मतलब एक नंबर मिलेगा, आपको x के टर्म्स में आंसर नहीं मिलेगा. सो लेट वी सब्सटीट्यूट x का वैल्यू 1 इन इक्वेशन नंबर 1 विच इज़ आवर फंक्शन. तो x का वैल्यू अगर हम 1 रख रहे हैं तो f ऑफ x बिकम tan इनवर्स 1 प्लस कॉट इनवर्स 1. अब tan इनवर्स 1 होता है पाई बाई 4 और कॉट इनवर्स 1 भी होता है पाई बाई 4. सो पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 4 which is 45 plus 45 gives you pi by 2. मतलब we proved कि f of x equal to pi by 2 है. इसको हम इक्वेशन नंबर 2 मार्क करेंगे. सो फ्रॉम 1 and 2 we can write on f of x which is tan inverse x plus cot inverse x is equal to pi by 2. सिंपल कॉन्सेप्ट है, आप एक बार समझेंगे इजीली समझ जाएंगे. Question 2, understand same concept. Sec inverse x plus cosec inverse x is equal to pi by 2. This is valid only when mod x is greater than 1. Let's start again. We'll write on f of x is equal to sec inverse x plus cosec inverse x. We'll differentiate. उससे पहले हमें ये प्रूव करना है कि ये हमेशा f of x pi by 2 होना चाहिए. Let we differentiate. सो सेक इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स इंटू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 और डेरिवेटिव ऑफ कोसेक इनवर्स एक्स होता है माइनस 1 अपॉन एक्स इंटू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1. सो सिंपली आप चेक करेंगे तो टर्म्स विल कैंसिल. सो एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव गिव्स यू 0. इसका मतलब सेम कि फंक्शन कोई तो कांस्टेंट फंक्शन है. सो एफ ऑफ एक्स इज कांस्टेंट फॉर एनी वैल्यू ऑफ एक्स. यू कैन सब्सटीट्यूट एनी वैल्यू. हमने फर्स्ट वाले में x का वैल्यू 1 रखा, अब x का वैल्यू √2 रख रहे हैं. हम स्टैंडर्ड वैल्यू प्रेफर कर रहे हैं जिससे इजीली आंसर प्रूव हो जाए. सो सेक इनवर्स ऑफ √2 प्लस कोसेक इनवर्स ऑफ √2 अपडेटेड इन इक्वेशन नंबर 1. सो दैट गिव्स यू f of x इज इक्वल टू पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 4 विच इज नथिंग बट इक्वल टू पाई बाई 2. मतलब वी प्रूव्ड f of x इक्वल टू पाई बाई 2. Mark as equation 2. So from 1 and 2 we can write on sec inverse x plus cosec inverse x will be equal to pi by 2. So by using this concept you can prove any formula related with this concept. So moving starting with the next concept, next question number 5, differentiate following with respect to x. अब हमें डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x लेना है, नॉट इट्स इनवर्स फंक्शन. डायरेक्टली डेरिवेटिव फाइंड करना है ऑफ अ इनवर्स फंक्शन. सो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x. सो चेन रूल बहुत इंपॉर्टेंट है. लेफ्ट से स्टार्ट करेंगे. y का डेरिवेटिव dy बाई dx इज इक्वल टू d बाई dx ऑफ tan इनवर्स ऑफ log x. तो सबसे पहले हमें tan इनवर्स दिख रहा है. सो वी अप्लाई डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स विच इज़ 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर. बट यहाँ पे tan इनवर्स ऑफ log x है.
Therefore we can write down 1 upon 1 plus log x the whole square. x को जो भी x के जगह पे है उससे रिप्लेस करना है फॉर्मूले में, नथिंग एल्स यू हैव टू डू, इनटू d by dx ऑफ log x, क्योंकि x नहीं है log x है. So in the next step log x का डेरिवेटिव is 1 upon x. So the final answer we gives you dy by dx is equal to 1 upon x, जो कि log x के डेरिवेटिव से आया, मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस log x द होल स्क्वायर. सो सिंपली बेसिक रूल अप्लाई करना है, फॉर्मूला अप्लाई करना है, नथिंग एल्स यू हैव टू डू. अंडरस्टैंड वन मोर, y is equal to cot inverse of x cube. So differentiate this with respect to x. So left से start, y का डेरिवेटिव dy by dx is equal to d by dx of cot inverse of x cube. तो हमें पहले cot इनवर्स का डेरिवेटिव लेना है. सो cot इनवर्स का डेरिवेटिव होता है -1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, बट यहाँ पे x के जगह पे x क्यूब है, सो x को x क्यूब से रिप्लेस करेंगे इनटू d by dx ऑफ x क्यूब. सो इन नेक्स्ट स्टेप डेरिवेटिव ऑफ x क्यूब इज 3x स्क्वायर, दैट वी मल्टीप्लाई बाय -1 गिव्स यू -3x स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस x रेज टू आप 6 भी लिख सकते हैं, और आप यू कैन राइट डाउन एज 1 प्लस एक्स क्यूब द होल स्क्वायर, which is your answer of dy by dx. Moving further, gives you answer as answer of the second question. I'll discuss the one more. मल्टीपल क्वेश्चन विल डिस्कस, जिससे आपके इनवर्स फंक्शन का डायरेक्ट जो डेरिवेटिव ले रहे हैं उसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा. We have to differentiate sin inverse of x raised to 3 by 2. Write down differentiate with respect to x, because variable is x, y is a function of x. So let's start, y का डेरिवेटिव dy by dx into d by dx of sin inverse of x raised to 3 by 2. हमने डेरिवेटिव ऑपरेटर को अप्लाई कर दिया. सो फर्स्ट वी डिफरेंशिएट sin इनवर्स, जिसका फॉर्मूला होता है 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, बट x के जगह पे x raised to 3 by 2 था, सो अकॉर्डिंगली विल रिप्लेस x by x raised to 3 by 2 into d by dx of x raised to 3 by 2. So x raised to 3 by 2 का डेरिवेटिव by using formula of x raised to n, if we apply answer is 3 by 2 जो पावर में वो मल्टीप्लाई में आ जाएगा into x raised to 3 by 2 minus 1. 3 by 2 minus 1 gives you 1 by 2, जिसको हमने square root of x लिखा है. So dy by dx gives you 3 into square root of x होल डिवाइड बाई 2 इंटू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस, आप चाहिए तो डिनोमिनेटर का 2 एंड न्यूमरेटर का 2 कैंसिल कर सकते हैं. दैट गिव्स यू आंसर एज 2 इंटू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब. लेट्स कंटिन्यू द फोर्थ वन. y इज इक्वल टू साइन रेज टू 4 ऑफ साइन इनवर्स ऑफ रूट एक्स. अगर पावर 4 नहीं होता तो हम साइन एंड साइन इनवर्स का इफेक्ट कैंसिल कर देते हैं, बट पावर 4 है. So we differentiate, start with left hand side y का डेरिवेटिव dy by dx, and right में हमने पहले पावर 4 का डेरिवेटिव लिया, that become 4 into sin raised to 3 into sin inverse x as it is रखा, into now we'll write on d by dx of sin into sin inverse x. तो आप यहाँ पे चाहिए तो sin and sin inverse x का इफेक्ट कैंसिल कर सकते हैं, और डायरेक्टली यू कैन राइट डाउन आंसर. डेरिवेटिव ऑफ sin x is cos ऑफ साइन इनवर्स रूट एक्स, ये साइन का डेरिवेटिव हुआ, इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स ऑफ रूट एक्स. सो इन नेक्स्ट स्टेप यू कैन राइट डाउन डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स एक्स इज 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, बाकी टर्म को हमने सेम रखा है, इनटू नाउ डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स विच इज 1 अपॉन 2 रूट एक्स. तो डी बाई डी एक्स के पहले जो टर्म है उसे हम सेम रख रहे हैं, विच इज 4 into sin cube of sin inverse of root x into cos of sin inverse of root x all divided by 1 minus x square होता है, इसलिए रूट और स्क्वायर कैंसिल करके हमने सिर्फ x लिखा है एंड मल्टीप्लाइड बाय 2 रूट x. सो दिस इज व्हाट योर आंसर ऑफ dy by dx. सो पहले पावर के बारे में सोचना है, उसके बाद लेफ्ट से स्टार्ट करना है, जो फंक्शन पहले आएगा उसका पहला डेरिवेटिव, देन मल्टीप्लाइड बाय द सेकेंड फंक्शन डेरिवेटिव, मल्टीप्लाई बाय थर्ड फंक्शन डेरिवेटिव. जब तक आप x तक नहीं पहुंच रहे हैं तब तक आपको मल्टीप्लिकेशन में जो भी फंक्शंस आ रहे हैं उसके डेरिवेटिव लिखते चलना है, एंड दिस रूल ओनली कॉल्ड एज चेन रूल.
Let's continue. Understand one more. Y is equal to sine inverse of under root of 1 plus x square whole divided by 2. So we have to differentiate with respect to x. Start from left. Y का डेरिवेटिव dy by dx और साइन इनवर्स का डेरिवेटिव होता है 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर. बट यहाँ पे x के जगह पे रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 है. उसका स्क्वायर किया हमने तो रूट हटा दिया है, जो कि साइन इनवर्स का डेरिवेटिव हुआ, इनटू डेरिवेटिव ऑफ जो अब साइन इनवर्स x का एंगल है, विच इज रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर. सो इन नेक्स्ट स्टेप 1/1 माइनस 1 plus x square divided by 2 as it is लिखेंगे, and derivative of root first we'll find out. So as we know, derivative of root x is 1/2 root x multiply by जो टर्म पहले से था multiply by d by dx of 1 plus x square divided by 2. हमने रूट का डेरिवेटिव ले लिया. इन नेक्स्ट स्टेप नाउ इफ वी चेक 1/2 कांस्टेंट, सो वो हम बाहर ले लेंगे और 1 का डेरिवेटिव जो न्यूमरेटर में है वो 0 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव बिकम 2x. सो दैट विल राइट विथ न्यूमरेटर्स 1 गिव्स यू 2x अपॉन डिनोमिनेटर में 2 2 है, एक 1 प्लस एक्स स्क्वायर के अपॉन वाला 2 और एक 2 जो हमें पहले स्क्वायर रूट के साथ था. सो गिव्स यू 2x अपॉन 4 इंटू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2. आप चाहिए तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं और लेट इट बी. सो न्यूमरेटर का 2 एंड डिनोमिनेटर का 4 विल कैंसिल, गिव्स यू x अपॉन 2 इंटू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इंटू 1 माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2. स्क्वायर रूट स्क्वायर की वजह से कैंसिल हुआ है. सो दिस इज व्हाट आंसर ऑफ योर क्वेश्चन. Moving further, again we have to differentiate following with respect to x. Question is y equal to cosec inverse of 1 upon cos phi raised to x. So starting में हमने जो कॉन्सेप्ट यूज़ किए हैं वो यूज़ करने का टाइम आ गया है. So अगर आप चेक करेंगे तो cosec inverse of 1 upon लिखा है. So we can convert this in terms of 1 upon cos as sec into phi raised to x. और आप इसे चाहिए तो साइन इनवर्स ऑफ कॉस फाई रेज टू एक्स भी लिख सकते हैं. मैंने अपॉन में जो कॉस था तो बेसिक कॉन्सेप्ट यूज किया कि 1 अपॉन कॉस को हम सेक बोलते हैं. नाउ द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट वी नो कोसेक पाई बाई 2 माइनस एक्स को हम सेक एक्स लिख सकते हैं. सो विल राइट इट y इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स ऑफ जो सेक फाई रेज टू एक्स है उसे हटा के हम कोसेक पाई बाई 2 माइनस पाई रेज टू एक्स लिख रहे हैं. By using the second concept cosec inverse of cosec x, x होता है, so cosec inverse of cosec का इफेक्ट कैंसिल हो जाएगा और y का वैल्यू आपको मिलेगा पाई बाई 2 माइनस फाई रेज टू एक्स. अब आपको डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x. तो अगर आप ट्रिग्नोमेट्रिक का कॉन्सेप्ट अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हैं तो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक का डेरिवेटिव डिफिकल्ट नहीं है. इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक का डेरिवेटिव बोला मैंने, डिफिकल्ट नहीं है अगर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक के बेसिक कॉन्सेप्ट्स आते हैं तो. सो y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स, पाई बाई 2 का डेरिवेटिव 0 माइनस पाई रेज टू एक्स का डेरिवेटिव बिकम पाई रेज टू एक्स इंटू लॉग 5. सो ओवरऑल आंसर ऑफ dy बाई डी एक्स इज माइनस 5 इंटू माइनस पाई रेज टू एक्स इंटू लॉग 5. अंडरस्टैंड वन मोर. y is equal to cos inverse of under root of 1 plus cos x divided by 2. So we have to differentiate and here we use formula of trigonometry which is called as multiple angle formula. जैसे कि हमें पता है cos 2x का फॉर्मूला होता है 2 cos square x minus 1. तो -1 जो राइट में है उसे हम लेफ्ट में लाएंगे तो 1 plus cos 2x को हटा के हम 2 cos square x लिख सकते हैं. 1 plus cos 2x है तो राइट में हम 2 cos स्क्वायर x लिख सकते हैं. अगर आप हमारे क्वेश्चन में चेक करेंगे तो वहाँ पे x है तो उसे हटा के हम x बाई 2 लिखेंगे. सो इंस्टेड ऑफ 1 प्लस cos x वी विल राइट डाउन 2 इंटू cos x अपॉन 2 द होल स्क्वायर होल डिवाइड बाई 2. क्योंकि हमारा इंटेंशन है सर हम अगर डायरेक्टली ट्रिग्नोमेट्री इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का जो फॉर्मूला है वो अप्लाई करें चलेगा, देन ऑल्सो you'll get the same answer but that become a lengthy one. थोड़ा ट्रिगो का यूज़ करेंगे तो सम थोड़ा इजी हो जाएगा.
सो आप न्यूमरेटर का 2 और डिनोमिनेटर का 2 कैंसिल कर देंगे, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, गिव्स यू y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ कॉस x बाई 2, कॉस एंड कॉस इनवर्स का इफेक्ट कैंसिल, x बाई 2 रह गया। नाउ वी डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, सो y का डेरिवेटिव dy बाई dx और x बाई 2 में 1 बाई 2 कॉन्स्टेंट, x का डेरिवेटिव 1, सो dy बाई dx का वैल्यू इज 1 बाई 2। दिस इज व्हाट योर आंसर ऑफ ओरिजिनल y इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 प्लस cos x अपॉन 2। अगर आप इसका डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करके भी डेरिवेटिव लेंगे तो बिकम अ लेंथी वन एंड यू विल गेट द सेम आंसर। सो यूज कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। अंडरस्टैंड some more questions. Y is equal to cosec inverse of 1 upon 4 cos cube 2x minus 3 cos 2x। सो डिनोमिनेटर में 4 cos क्यूब माइनस 3 cos दिख रहा है, तो आपको अगर फॉर्मूला याद हो तो cos 3x का फॉर्मूला होता है 4 cos 3x 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x। डिफरेंस ये है कि क्वेश्चन में 2x है और हम जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला देख रहे हैं उसमें x है, जब x होगा तो यहाँ 3x है। सिमिलरली विल मॉडिफाई आवर क्वेश्चन, विल राइट डाउन y इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ cos 6x का फॉर्मूला है, because instead of 6x you can write on 3 of 2x and you apply the same formula we get। so again 1 upon cos को हम sec लिख सकते हैं as per the first question। आप sec को हटा के cosec pi by 2 minus 6x लिख सकते हैं। again cosec and cos का इफेक्ट कैंसिल, gives you y is equal to pi by 2 minus 6x। सर स्टार्टिंग में हम अगर रेसिप्रोकल करें तो कोसिक को हटा के साइन मिलेगा और जो कॉस जो डिनोमिनेटर है वहाँ पे वापस से सेम कॉन्सेप्ट ही यूज़ करेंगे, नो प्रॉब्लम एट ऑल। सो डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वी डू, वाई का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इज डी वाई बाई डी एक्स, पाई बाई 2 का डेरिवेटिव 0, माइनस 6x का डेरिवेटिव इज माइनस 6, विच इज आवर फाइनल आंसर। लेट्स कंटिन्यू फॉर द नेक्स्ट वन। y is equal to tan inverse of 1 minus tan x upon 1 plus tan x। Let's understand some formula which we use here। as we know tan a minus b होता है tan a minus tan b upon 1 minus tan a tan b। अगर आप a को पाई बाई 4 से और b को x से रिप्लेस करें तो हमारा फॉर्मूला बन जाएगा tan पाई बाई 4 माइनस x एंड विच कैन बी रिटन एज 1 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan x। इसका मतलब 1 माइनस tan x और 1 प्लस tan x को हटा के हम डायरेक्टली tan ऑफ पाई बाई 4 माइनस x लिख सकते हैं। सो अब आप चेक करेंगे तो थोड़ा सा हमने फॉर्मूला रिवाइज किया ट्रिग्नोमेट्रिक का एंड सम बिकम वेरी इजी। tan एंड tan इनवर्स का इफेक्ट कैंसिल, y इज इक्वल टू रिमेनिंग पाई बाई 4 माइनस x। नाउ वी डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। पाई बाई 4 का डेरिवेटिव y का डेरिवेटिव होगा dy बाई dx, पाई बाई 4 का डेरिवेटिव 0 और x का डेरिवेटिव 1, बिकॉज ऑफ माइनस साइन गिव्स यू आंसर एज dy बाई dx इज इक्वल टू माइनस 1। सिंपल आंसर। फर्दर द क्वेश्चन इज y इज इक्वल टू cot इनवर्स ऑफ sin 3x अपॉन 1 प्लस cos 3x। सो फर्स्ट ऑफ ऑल cot इनवर्स को हम tan इनवर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो वी हैव अ कॉन्सेप्ट ऑफ cot इनवर्स x कैन बी रिटन एज tan इनवर्स ऑफ 1 अपॉन x, मतलब वी डू रेसिप्रोकल ऑफ एंगल। सो y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 1 प्लस cos 3x डिवाइड बाय sin 3x। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, हाउ टू यूज फॉर्मूला, चेक इट। इन अ न्यूमरेटर वी हैव 1 प्लस cos 3x, जैसे कि हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था cos 2x का फॉर्मूला से हम 1 प्लस cos 2x का आंसर फाइंड कर सकते हैं 2 cos square x। 1 प्लस cos 2x को हम लिख सकते हैं 2 cos square x, और एक फॉर्मूला sin 2x का भी है हमारे पास which gives you answer as 2 sin x cos x। so that two formula we use in our question। so numerator become 2 into cos of 3x by 2 the whole square and denominator जो sin 3x है, सर sin 3x का फॉर्मूला यूज किया, sin 3x का फॉर्मूला यूज किया तो देयर आर टू टर्म्स, बीच में माइनस साइन आता है तो सिंप्लीफिकेशन और डिफिकल्ट हो जाएगा, इसलिए हमने sin 3x के जगह पे sin 3x को sin 2x के फॉर्मूले में कन्वर्ट किया। सो न्यूमरेटर्स 2 कैंसिल एंड फ्रॉम डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर cos 3x by 2
will cancel, gives you y is equal to tan inverse of cos 3x by 2 एक न्यूमरेटर में बचा और डिनोमिनेटर में बचा है sin 3x by 2. So that gives you cos upon sin as cot. Now बाहर अगर आप चेक करेंगे तो tan इनवर्स है, एंगल में cot है तो we know the property. We can convert that cot into tan by writing tan of pi by 2 minus 3x by 2. So tan and tan inverse का effect cancel. Answer is y is equal to pi by 2 minus 3x by 2. Now we differentiate with respect to x, gives you dy by dx is equal to minus 3 by 2. pi by 2 का डेरिवेटिव 0, माइनस 3 by 2 आपने कांस्टेंट लिया और x का डेरिवेटिव 1 होता है. सो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक का डेरिवेटिव सीखना है तो ट्रिगो आना बहुत ज़रूरी है. थोड़ा फार्मूला रिवाइज करेंगे, इजीली यू आर एबल टू डू. और बहुत ज़्यादा जो फार्मूला यूज़ होता है वो एक cos 2x का फार्मूला और sin 2x का फार्मूला और tan a प्लस बी एंड tan a माइनस बी. ये चार फार्मूले अगर आप रिवाइज कर ले तो भी मेजॉरिटी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे. लेट्स कंटिन्यू वन मोर. y is equal to tan inverse of cos 7x upon 1 plus sin 7x. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. दोनों क्वेश्चन को हमने साइड बाय साइड इसलिए लिया है क्योंकि आप जो हम अप्लाई करने वाले हैं इज नॉट सेम. क्वेश्चन थोड़ा सा दिखने में सेम है बट ऐसा है नहीं. सो लेट वी सिंप्लीफाई. जो न्यूमरेटर में कुछ तो करके हमें ब्रैकेट के अंदर tan लाना है. सो वी अप्लाई अ फॉर्मूला. cos 2x का एक और फॉर्मूला होता है cos square x minus sin square x, और sin 2x का फॉर्मूला एज वी नो 2 sin x cos x, और जो 1 दिख रहा है उसको हटा के हम cos square x plus sin square x लिख सकते हैं. सो वी यूज दिस फॉर्मूला इन आवर क्वेश्चन. सो हमने cos 2x का फॉर्मूला अप्लाई किया न्यूमरेटर में. cos 2x होता था तो cos x स्क्वायर माइनस sin x स्क्वायर लिखते थे, हाफ एंगल कर देते थे. यहाँ 7x है तो हमने 7x by 2 कर दिया. sin 7x का फॉर्मूला अप्लाई किया तो 2 cos 7x by 2 sin 7x by 2, और 1 के जगह पे हटा के हम cos स्क्वायर 7x by 2 प्लस sin स्क्वायर 7x by 2 लिख सकते हैं. सर 7x by 2 ही क्यों लिखा हमने? बिकॉज बाकी सब का एंगल भी 7x by 2 है, इसलिए 1 को हम एकदम एंड में शिफ्ट करेंगे जो कि बाकी लोग का एंगल होगा उसके हिसाब से. अब अगर आप न्यूमरेटर में चेक करें तो वी हैव अ फॉर्मूला, बेसिक फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर which is a plus b and a minus b, और डिनोमिनेटर को अगर आप ठीक से ऑब्जर्व करेंगे तो इट गिव्स यू फॉर्मूला ऑफ a plus b the whole square. So we apply this basic formula. Numerator में become a plus b a minus b, denominator become a plus b the whole square. तो एक ब्रैकेट सिंपली कैंसिल होता हुआ दिख रहा है. अभी भी tan के टर्म्स में आंसर नहीं आया. सो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में ऐसा क्या करें जिससे वो tan में कन्वर्ट हो जाए. So simply we divide numerator and denominator by cos 7x by 2, which gives you tan inverse of 1 minus tan 7x by 2 upon 1 plus tan 7x by 2. And we derived the formula, थोड़े देर पहले भी डिस्कस किया है, वही फॉर्मूला फिर से हम यूज़ कर रहे हैं. tan a minus b का फॉर्मूला हम यूज़ कर रहे हैं. a के जगह पे pi by 4 और b के जगह पे 7x by 2 we use, and we update. That gives you answer of tan pi by 4 minus 7x by 2 can be written as 1 minus tan 7x by 2 upon 1 plus tan 7x by 2. So updating answer, tan inverse of tan pi by 4 minus 7x by 2, effect of tan and tan inverse will cancel, gives you y equal to pi by 4 minus 7x by 2. So differentiate with respect to x, gives you answer is dy by dx is equal to minus 7 by 2. This is what the answer of our question. Two more questions. Moving further, y is equal to tan inverse of under root of 1 plus cos 4x upon 1 minus cos 4x. So we have to do modification. एंगल को इस तरह से मॉडिफाई करें जिससे अंदर tan आ जाए, so that we can cancel the effect of tan inverse. So we can write on 1 plus cos 2x is equal to 2 cos square x and 1 minus cos 2x is equal to 2 sin square x. ये हमने cos 2x के बेसिक फॉर्मूले से ही डिराइव किया है. तो 1 plus cos 2x को हटा के 2 cos square x लिखना है. 2x है तो x लिख रहे हैं,
ओरिजिनल क्वेश्चन में 4x है तो हम 2x लिखेंगे. So that become tan inverse of 2 cos square 2x upon 2 sin square 2x. So simply 2 and 2 numerator का denominator का cancel, cos square and sin square का square root की वजह से square cancel हो जाएगा, and cos upon sin as we know it become cot, and cot को हम easily tan में convert कर सकते हैं, that is tan pi by 2 minus x is equal to cot x. So we'll write on tan inverse of tan of pi by 2 minus 2x, effect will cancel, and y equal to pi by 2 minus 2x. Now we'll differentiate with respect to x, and simply pi by 2 का derivative is 0 and minus 2x का derivative is minus 2, which is what answer of our question. Let's discuss two more. Let's start. Y equal to tan inverse of cosec 2x plus cot 2x. Very important कि cosec 2x plus cot 2x को हम कैसे कन्वर्ट करेंगे. तो वी कन्वर्ट इट इनटू साइन एंड कॉस. तो cosec 2x को हम 1 अपॉन sin 2x लिख सकते हैं, और cot 2x को हम cos 2x अपॉन sin 2x लिख सकते हैं. डिनोमिनेटर sin 2x सेम. सो नाउ विल मॉडिफाई. थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था cos 2x का फॉर्मूला. 1 प्लस cos 2x को हटा के हम 2 cos square x लिख सकते हैं, और sin 2x के जगह पे 2 sin x cos x लिख सकते हैं. सो 2 कैंसिल, एक cos कैंसिल हो जाएगा, न्यूमरेटर में एक cos और डिनोमिनेटर में एक sin रिमेनिंग, एंड दैट cos अपॉन sin गिव्स यू cot. वी कैन कन्वर्ट cot इनटू tan. तो cot x को हटा के हमने tan pi by 2 minus x लिखा, and that become pi by 2 minus x. We differentiate with respect to x. That gives you dy by dx is equal to 0 minus 1, which is equal to minus 1. So this is what answer of our question. The next one is y is equal to, very important, last question, y is equal to cot inverse of under root of 1 plus sin 6x plus 1 minus sin 6x whole divided by 1 plus sin 6x minus 1 minus sin 6x. सो इसे हम 1 by 1 डिस्कस करने वाले हैं. जो अंडर रूट में 1 प्लस साइन 6x है, उसको हमने कुछ ऐसे मॉडिफाई किया है. sin 6x को हटा के हमने sin 2x का फॉर्मूला अप्लाई किया, तो sin 6x बिकम 2 cos 3x इंटू sin 3x, और 1 के जगह पे हमने लिखा है cos 3x द होल स्क्वायर प्लस sin 3x द होल स्क्वायर. थोड़ी देर पहले हमने ये डिस्कस भी किया था कि 1 प्लस साइन को होल स्क्वायर में कैसे कन्वर्ट करना. फॉर्मूला अगर आप चेक करें तो इट बिकम a प्लस बी द होल स्क्वायर. तो वी राइट एज cos 3x प्लस sin 3x द होल स्क्वायर. अंडरस्टैंड वन मोर टाइम. 1 माइनस साइन 6x में भी हमने सेम तरीका लिया है. साइन 6x का फॉर्मूला हमें नहीं पता, तो हम उसे साइन 2x में कन्वर्ट कर रहे हैं. बाय अप्लाइंग साइन 2x का फॉर्मूला वी कैन राइट इट एज 2 cos x sin x, बट 6x था इसलिए हमने उसे 3x से रिप्लेस किया है, और 1 के जगह पे हम लिख रहे हैं cos 3x द होल स्क्वायर प्लस sin 3x द होल स्क्वायर, which become a plus a minus b the whole square, cos 3x minus sin 3x the whole square. So हमने कौन सा फॉर्मूला यूज़ किया है यहाँ पे. हमने sin 2x को हटा के 2 sin x cos x का फॉर्मूला यूज़ किया. 1 को हटा के हम cos square x plus sin square x का फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं. जो भी हमें सुटेबल एंगल क्वेश्चन के हिसाब से लेना चाहिए, हम cos square x plus sin square x में वो ले रहे हैं. क्वेश्चन के हिसाब से हमने उससे 3x लिया है, एंड देन वी यूज़ a plus b द होल स्क्वायर. सो इन सबको अगर हम ब्रैकेट के अंदर अपडेट करें तो टर्म्स विल कैंसिल. तो स्क्वायर रूट पहले कैंसिल कर दिया हमने स्क्वायर की वजह से, एंड इफ़ यू ओपन द ब्रैकेट, न्यूमरेटर से sin 3x कैंसिल होगा, और डिनोमिनेटर से आप चेक करेंगे तो cos 3x कैंसिल होगा, एंड दैट गिव्स यू y इक्वल टू cot इनवर्स ऑफ 2 cos 3x अपॉन 2 sin 3x. तो 2 कैंसिल, cos 3x अपॉन sin 3x गिव्स यू cot 3x, cot and cot inverse का इफेक्ट कैंसिल, so y is equal to 3x. so that gives you, differentiate with respect to x के बाद y dy by dx is equal to 3. so this is what the simple answer. so जो हमने ये लास्ट के क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, इसमें ट्रिग्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट बहुत ज़रूरी है, जिससे इजीली यू कैन डिराइव द आंसर, और बोर्ड में इस टाइप के क्वेश्चंस आते भी हैं. Next lecture, when we continue with the derivative of inverse function, inverse trigonometric function, but by using standard substitution.
Thank you.